Good evening, everyone. We are coming back with this new episode of Sirali, which is about Sahil Ludhiani. मैं हूं समीना बानो, आपके सेशन की मॉडरेटर. और before we speak about what this session is going to be, let me give a little brief introduction of what Sirali is, what it stands for, and why do we even host such a book club. So Sirali is a book club which was conceptualized by three friends, Mohit Gupta ji, Parthasarathy Sen Sharma ji, and myself. We together, we had common love, which was books, and we made this book club, Sirali, which stands for secular, rational, and liberal. And this book club runs under the aegis of City Book Leaders, run by Mohit Gupta ji, and is hosted by Parthasarathy Sen Sharma ji, who is a senior bureaucrat, 1994 batch IS officer of UB Kader. Currently, he is serving as additional secretary at Ministry of Culture. But more than his bureaucrat identity, what he really cherishes about him, identity as an author. He has written 4 books, 2 novels, and 2 travelogues. 2 novels are Love Side by Side and Lucknow Diaries of Love and Longing. And 2 travelogues, A Passage Across Europe and Every Mile a Memory. All 4 books are in English and have also been translated in Hindi. You should definitely check them out on Amazon, on Flipkart, and you can thank me later. So आज इस साहिर की शाम में हम लोग बात करेंगे साहिर लुधियानवी, one of the most celebrated poet and lyricist of Hindi cinema. So साहिर लुधियानवी, यहाँ पे अगर आप लोग जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने जा रहे हैं, अगर आप कहेंगे आपने कभी साहिर का नाम नहीं सुना है तो ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो साहिर और साहिर की शायरी से आप कभी ना कभी जरूर मुतासिर हुए होंगे. आपने ये गाने जरूर सुने होंगे. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, अभी न जाओ छोड़कर, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, या फिर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. आप लोगों ने जरूर सुना होगा और जरूर इस शायरी पर वाह, एक सिंगल टाइम वाह जरूर बोला होगा. तो हम आज इन्हीं शायर साहिर लुधियानवी जी पर बात करने जा रहे हैं. And he has written some of the most enduring songs of all kinds, romantic with pathos and social consciousness, and all kinds of songs in Indian cinema. A rebellious and revolutionary poet who refused to write on husn, Khuda, and Jam, and rather wrote on socially conscious topics like declining value of society, senselessness of war and politics, or the consumerism and its dominance over love, gender gap. These were the kind of issues. I mean, he was the original feminist at a time when feminism was not even a word, was not even that popular. So, and a very enigmatic personality, a very difficult person to understand, even more difficult to sympathize with, yet he never ceases to fascinate us. And his life, his poetry in a way has been reflected, or his life is reflected in his poetry. Like he says in one of his शेर, दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो मुझे दिया है लौटा रहा हूं मैं. And तजुर्बातो हवादिस means all bad experiences of life, the tragic life he had, he's just returning back to us whatever he received from the world. So without any further ado, I will pass on the mic to Parthasarathy sir to take the session forward. Thank you, Samina. Welcome, friends. Welcome to another episode of Sirali. We have been doing this now for more than a year, and we have been discussing books on various topics, from Hindi cinema to books on food to books written by civil servants. The last episode was on Begum Akhtar. I welcome especially Atul Tiwari ji and Vidya Shah ji, our esteemed guests. It gives me immense pleasure to invite Atul Tiwari ji, welcome him to this episode, and also to introduce him. Atul Tiwari ji is a man of many facets. उन्होंने एक साथ बहुत से टोपियां पहन रखी हैं. A graduate of National School of Drama, he studied direction of advanced theatre from Germany. Then he has been a theatre doyen. He has directed many plays, Western adaptations of Western plays from Shakespeare to Schiller to Goethe. He has also directed many
many original screenplays. He's a teacher of theater and cinema and has taught in many Indian as well as universities abroad. But for people who are not so much conversant with theater, he is a very well-known screenplay writer of Hindi cinema. You would have seen his cinema in Mission Kashmir, Govind Nihalani's Dhruhakal, Bose, the Forgotten Hero. All these movies are his screenplay. He also likes to call himself a reluctant and an accidental actor. You would have seen him in Three Idiots, in Mulk, and recently in Maharani, the serial which has created such a wave in OTTs. I welcome Vidya Shah ji, and it is a great privilege to welcome her back in Serali and also to introduce her. She is a very consummate singer, musician, author, activist, scholar. One of the few whom I know that who started learning from Carnatic music and then switched over to Hindustani music, learned Khayal music under Shobha Mudgal ji, and also learned Ghazal, Thumri and Dadra under Shanti Hiranand ji, who is, as you know, direct disciple of Begum Akhtar ji. She, apart from singing, she has performed in many prestigious venues, including Tansen Samaroh in Gwalior, in Washington, and many places abroad. But she has also chronicled very beautifully a book on the early woman singers, Jalsa, the woman from studio to salon, from salon to studio. So this is a book that focuses on certain early part of the history of singing of the 20th century, and which is, I think, an area which very few people have chronicled that well. I welcome Vidya Shah ji, and thank you for joining us. मैं आप सबको वेलकम करता हूं, और जैसे तो मेरा पहला प्रश्न आपके लिए ही है जी, और ये मेरे को हमेशा इंट्रिग करता रहा है कि साहिर जब उर्दू साहित्य और उर्दू शायरी के फलक पे आए 1940s में, जब उनकी पहली किताब आई तलखियां, उससे पहले भी उर्दू साहित्य में बहुत शायर आ चुके थे, अपना सिक्का जमा चुके थे। हम गालिब, ज़ौक़, सौदा, मीर, इनकी बात अगर छोड़ भी दे, इकबाल की बात अगर छोड़ भी दे, तो साहिर के ठीक पहले ही अगर आप देखें तो तब तक फैज अहमद फैज, मजाज लखनवी, फिराक गोरखपुरी, जोश मलियाबादी, ये सब फेमस हो चुके थे, उनका सिक्का जम चुका था। परंतु फिर भी कोई बात तो है कि आज भी साहिर की लोकप्रियता, उसके इन सब के बावजूद एक अलग लोकप्रियता है। लोगों के दिलो दिमाग में साहिर की शायरी आज भी है, और उनके इंतकाल के 41 साल बाद, उनके जन्म के 100 साल बाद भी हम साहिर के नज़में, साहिर के गजलें, साहिर के गीत गाते हैं, सुनते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये क्या बात थी साहिर में कि इन सब बड़े बड़े जाने पहचाने शायर होने के बावजूद साहिर में ऐसी कौन सी बात थी कि साहिर की लोकप्रियता इतनी ज्यादा और इतनी देर तक बनी रही? अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी। पाठशाला जी जानना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि पाठशाला जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि साहिर के 100वें साल में और उनकी पुण्यतिथि 41वीं पुण्यतिथि के वक्त पे आपने सेराली की तरफ से ये कार्यक्रम आज रखा साहिर पे। और मैं सच बता रहा हूँ कि अगर साहिर को, अगर अब्दुल हई नाम के लड़के को डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की एक नज्म में साहिर लफ्ज न दिख जाता और उससे वो अपना तखल्लुस न बना लेता, तो शायद है कि साहिर ने अपना दूसरा तखल्लुस रखा होता, जिसका नाम होता सेराली। क्योंकि सेकुलर, रैशनल और लिबरल, ये अगर 3 वैल्यूज की हम बात करें तो साहिर अगर कोई चीज थे तो वो इन्हीं तीनों चीजों से, सेकुलर, रैशनल और लिबरल वैल्यू से ही बने हुए थे। और ये जितने नाम आपने दूसरे लिए हैं उर्दू की दूसरी फसल के, आपने गालिब से शुरुआत की और ज़ौक़ और मीर और सौदा की बात की, आपने डॉक्टर इकबाल की बात की, वो सब तो पहली फसल वालों को मैं मानता हूँ, जहाँ से कि फिर धीरे धीरे बदलेगी शायरी। और ये शायरी बदलने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी आपने नाम लिया, चाहे उसमें फैज़ का नाम हो या उसमें कैफी का नाम हो या उसमें अली सरदार जाफरी का नाम हो या उसमें लखनऊ के दूसरे शोरा का नाम हो, चाहे मजाज लखनवी हों और चाहे दूसरे लोग हों,
चाहे जोश साहब भी लखनऊ से, मैं मानूंगा मलिहाबादी, वो लोग हों, ये सब के सब लोग एक पर्टिकुलर सोच से निकले थे, जो प्रोग्रेसिव राइटर्स की सोच थी, जिसकी शुरुआत सन 36 में लखनऊ शहर में ही हुई थी। जो प्रेमचंद साहब ने आकर के जिस मजलिस को, जिसको उन्होंने एड्रेस किया था, और प्रेमचंद साहब ने जब कहा था कि अब हमें जो एस्थेटिक्स के मिकदार बदलने पड़ेंगे, और एस्थेटिक्स के मिकदार में अब हमको खेत के मेड़ पे बैठी हुई सूखी ओठे वाली औरत की भी खूबसूरती देखनी पड़ेगी, जिसके पसीने से ये हिंदुस्तान जीता है। और ये जो शब्द जो थे और ये विचार जो थे, जो लेकर के बहुत से लोग जो वहां पे आए थे, 3-5 लोगों ने उसका एक मैनिफेस्टो भी तैयार किया था, प्रोग्रेसिव राइटर्स, जिसमें कि सज्जाद ज़हीर साहब सबसे इम्पोर्टेंट थे, डॉक्टर मुल्कराज आनंद सबसे इम्पोर्टेंट थे, और बहुत से लोग, महमूद जफर साहब बहुत इम्पोर्टेंट थे। और इन लोगों ने ये जो किया, तो ये सब उसी फसल के लोग थे। तो इनको मैं एक दूसरे के ऐसा पिच नहीं करना चाहूंगा कि इसमें से कौन ज्यादा था, कौन बड़ा था, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो फैज की जो पॉपुलैरिटी है वो इंटरनेशनली जितनी ज्यादा है, उतनी ज्यादा शायद इंटरनेशनली अगर हम देखें, उर्दू और हिंदुस्तानी ना समझने वाले लोगों में भी देखें, तो जो फैज की जो इज्जत है, फैज का जो मकाम है, वो तो शायद साहिर का भी नहीं है। इसलिए आई वुड नॉट लाइक टू पिच देम अगेंस्ट ईच अदर, बट यस, अमंग्स्ट देम साहिर वाज वन ऑफ द यंगर ऑफ दिस लॉट। एक्चुअली वाज द यंगेस्ट ऑफ दिस लॉट। ये सब लोग उनसे 10 साल, 11 साल, 5 साल, 7 साल बड़े थे, इंक्लूडिंग कैफी साहब भी 2 साल उनसे बड़े थे। तो उसमें ये जो यंग वॉइस आई, और इसमें कमाल की बात ये भी है कि इस यंग वॉइस ने जिस तरह से आकर के लोगों को छुआ, और तलखियों के जरिए अपनी पहले पोएट्री कलेक्शन के जरिए और अपनी पोएट्री के जरिए जिस तरह से छुआ है, और उसके बाद में उनका फिल्मों में आना, फिल्मों में इस लॉट में से कई लोग आए। फिल्मों में इस लॉट में से जावेद साहब के निसार अख्तर साहब, उनके फादर आए, फिल्मों में से कैफी साहब आए, और उनमें से जो सबसे ज्यादा बड़ी सफलता मिली है वो साहिर को मिली है। और आज शायद हम सबके सब कॉन्शियस में जो साहिर बैठे हुए हैं, उसके पीछे उनका फिल्मों में आना, और फिल्मों में भी उसी तरह सफल होना, और फिल्मों में भी उतनी खूबसूरत पोइट्री को लेकर के आने का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो इन कदरों को, जो मैं शेराली की कदरें कह रहे हैं, उन कदरों को लेकर के फिल्म इंडस्ट्री में आना और उनको बरकरार रखना जहां तक पॉसिबल हो सका। फिल्म में आने के बाद में आप डायलॉग राइटर की तरह होते हैं, आप स्क्रीन राइटर की तरह होते हैं, आप ही को रावण के भी संवाद लिखने हैं, आप ही को राम के भी संवाद लिखने हैं। तो कभी आप अच्छा लिखेंगे, कभी आप बुरा लिखेंगे, आप दोनों तरफ से बातें करते हैं। लेकिन फिर भी उन गीतों में भी, उन फिल्मी गीतों में भी जिस तरह का मिकदार उन्होंने उर्दू का रखा, और जो कहा जाता है कि शायर को बहुत सी चीजों से मोहब्बत होती है, लेकिन पहली मोहब्बत शायर को अपनी जबान से होनी चाहिए, और साहिर को अपनी जबान से जो मोहब्बत थी, और ये मोहब्बत उन्होंने बरकरार रखी, शायद इसलिए भी साहिर का दर्जा बहुत ऊंचा है। अतुल जी, शायर के बारे में जब बात करते हैं तो शायरी की रिसाइटेशन के बिना बात पूरी नहीं होती, हम चाहे उनके बारे में जितना भी बोल लें। साहिर के बारे में अलग अलग ख्यालात हो सकते हैं, और हमारे पैनलिस्ट में भी हमारे अलग अलग ख्यालात हो सकते हैं। मैं साहिर को शुरू के दिनों में एटलीस्ट एक मौलिक रूप से रोमांटिक पोएट मानता हूँ। रोमांस का डेफिनेशन भी सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट अगर हम ये माने कि साहिर शुरू से एक मौलिक रूप से एक रोमांटिक पोएट थे, तो मैं हमारे सबके लिए चाहता हूं कि आप अपने पसंद का शायर साहिर का एक रोमांटिक नज्म चूज करें, उसको रिसाइट करें, और हमें बताएं कि ये आपको क्यों पसंद है। बिल्कुल पालसाथी जी, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि इस पूरे लॉट का जिसके हमने नाम लिया है, इसने बहुत कम उम्र में अपनी शायरी शुरू कर दी थी। 11 साल की उम्र में कैफी आजमी शेर कह देते हैं, और उसको बाद में अख्तरी बेगम गा भी देती हैं। तो इन सब ने इसी तरह से बहुत कम उम्र में साहिर ने भी शायरी अपनी शुरू कर दी थी। और 16, 17, 18 साल की उम्र में अगर आदमी शायर नहीं होगा तो क्या होगा, और अगर शायर होगा तो रोमांटिक शायर नहीं होगा तो और क्या होगा। जो कुछ भी हमारे अंदर चल रहा होता है उससे रोमांटिक शायर होना एक आसान सी बात होती है। ये बात अलग है कि शायर ने उस रोमांस को, उस जिंदगी से रोमांस को जिंदगी भर बरकरार रखा। लेकिन एक बात और भी देखने की है साहिर लुधियानवी की बात करते समय। जिस लुधियाना की हम बात कर रहे हैं, वो जिस पंजाब में लोकेटेड है, वहां पे साहिर के जन्म से 2 साल पहले जलियांवाला बाग जैसी चीज होती है। और जब साहिर 10 साल के हैं, और साहिर का घर लुधियाना खटकर कलां के बहुत पास। खटकर कलां वैसे तो
अलग जिले में है, वो जालंधर जिले में है, लेकिन खटकर कलां वो गांव है जहां से भगत सिंह आया था, जहां भगत सिंह पैदा हुआ था। और साहिर जब 10 साल के हैं सन 31 में, और भगत सिंह को फांसी लगती है, और साहिर जैसा एक काबिल लड़का, अब्दुल हई जैसा एक काबिल लड़का, ही वॉज नॉट ऑब्लिवियस टू व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड हिम। तो उसके रोमांटिसिज्म में एक तो वो रोमांस था जिसको अक्सर हम लोग रोमांस के नाम पे कहते हैं, और वहीं पे कहीं ना कहीं एक दूसरा रोमांस भी था जो उसने करकला से सीखा था, जो उसने अपने जलियांवाला बाग से सीखा था, जो उसने और चीजों से सीखा था। और इसीलिए वो स्टूडेंट यूनियंस ज्वाइन करता है, स्टूडेंट यूनियन में भी वो लेफ्टिस्ट यूनियन ज्वाइन करता है, और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव राइटिंग की तरफ जाता है। लेकिन फिर भी आपने जो बात कही और बहुत सही कही है, और मैं अगर अपनी एक पसंदीदा उनकी नज्म आपको सुनाना चाहूं जो रोमांटिक नज्मों से है, और वो भी जो है वो उनके पहले कलेक्शन से है, और उनके पहले कलेक्शन से तलखियों से है, और वो मैं आपको पढ़ के जरूर सुनाना चाहूंगा। मताए गैर, मताए गैर मतलब गैर की संपत्ति, किसी और की या किसी और का। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। 4 दिन की ये रफाकत जो रफाकत भी नहीं, उम्र भर के लिए आजार हुई जाती है। जिंदगी यूं तो हमेशा से परेशान सी थी, अब तो हर सांस गिरा बार हुई जाती है, यानी बोझिल हुई जाती है, ऐसा हुई जाती है। मेरी उजड़ी हुई नींदों के शबस्तानों में तो किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है। मेरी उजड़ी हुई नींदों के शबस्तानों में तो किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है। कभी अपनी सी कभी गैर नजर आती है, कभी इखलास की मूरत कभी हरजाई है। प्यार पर बस तो नहीं मेरा लेकिन फिर भी, प्यार पर बस तो नहीं मेरा लेकिन फिर भी, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, उन तमन्नाओं का इजहार करूं या न करूं। तू किसी और के दामन की कली है लेकिन, इसीलिए बताए गैर, तू किसी और के दामन की कली है लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू से बसी रहती हैं। तू कहीं भी हो तेरे फूल की आरिस की कसम, तेरी पलकें मेरी पलकों पे झुकी रहती हैं। It's a long poem, so I'll cut it short and go to the last one. कौन जाने मेरे इमरोज का फरदा क्या है, कुर्बतें बढ़ के पशेमान भी हो जाती हैं। दिल के दामन से लपटती हुई रंगी नजरें देखते देखते अनजान भी हो जाती हैं। याद कीजिएगा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम लोग। दिल के दामन से लिपटती हुई रंगी नजरें देखते देखते अनजान भी हो जाती हैं। मेरी दरमांदा जवानी की तमन्नाओं के मुज़महिल ख्वाब की ताबीर बता दे मुझको। मेरी दरमांदा जवानी के तमन्नाओं के मुज़महिल ख्वाब की ताबीर बता दे मुझको। तेरे दामन में गुलिस्तां भी हैं, वीराने भी, मेरा हासिल मेरी तकदीर बता दे मुझको। तो ये जो एक प्ली है, जो प्लीडिंग है इस पोएम में, और एक शदीद मोहब्बत है जानते हुए भी कि मैं जानता हूं कि तू गैर है, मगर फिर भी मेरे दिल में यह ख्याल आता है। तो ये देखिए, इस बड़ी शुरुआती पोएम से तलखियों के यह ख्याल कहीं ना कहीं बसा हुआ है साहिर साहब की शायरी। अतुल जी, आपने मुझे पता था कि आप इस नज्म को चुनेंगे, मताए गैर को। ये तलखियां में उनका ये नज्म आई थी, और उससे कई साल, 15 साल बाद एक हिंदी फिल्म आई थी, सोने की चिड़िया, जिसमें इस नज्म के 2 लाइन लेकर साहिर ने फिर पूरा गाना बना दिया था। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं। ये बिल्कुल बिल्कुल तलत महमूद और नूतन स्क्रीन पे थे। साहिर, अतुल जी, वॉज ए पॉपुलर पोएट। तलखियां से ही उनको अपनी काफी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। बट ये सच्चाई है, जैसा आपने कहा, कि साहिर घर घर तक फिल्म लिरिक्स के माध्यम से पहुंचे, और शुरू में उन्होंने स्ट्रगल भी किया बॉम्बे में। बट जब एक बार उनका नाम चला, तो उनके गानों की वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी हुई, उसने उनकी शायरी की पॉपुलैरिटी को भी रेनफोर्स किया।
और हिंदी फिल्म के लिरिक्स में अगर आप देखें तो इतने बड़े पोएट होने के बावजूद उनका रेंज सिर्फ उर्दू पोएट्री जैसे गानों में ही नहीं था। एक तरफ वो प्यासा के गाने भी दे रहे हैं, जिन्हें नाज हिंद पे वो कहाँ है, या ये महलो तख्तो है ताजों की दुनिया। ऑन द अदर साइड वो उसी प्यासा में सर जो तेरा चकराए भी लिख रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदी फिल्म में जब लिखते हैं, चाहे डायलॉग राइटर हो चाहे सिंगर हो, तो वो फिर हर टाइप के ही उनको लिखना है। जी। तो फिलोसफिकल गाने भी लिख रहे हैं, मन रे तो कहे ना धीर धरे, या मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, विच गोज इन डिफरेंट लेवल। तो लिरिक्स में उनका जो रेंज था वो बहुत बड़ा था। ओके Samina, I think this is the time when we introduce the audience to Sahir's books. I think I'll share some of the books of Sahir. So let's talk about, पहले हम लोग तलखियां की बात करते हैं। तलखियां की बातचीत हम पहले ही कर चुके हैं, और अतुल जी ने तलखियां के बारे में बताया हुआ है। मेरे पास तलखियां की किताब मौजूद भी है, आपको शायद अभी दिख नहीं रहा होगा। ये किताब 1943 में आई थी, और जब साहिर सिर्फ 23 ईयर, सिर्फ 23 साल की उम्र के थे, और इसमें कुछ 67 नज्म और कविताएं हैं और उनके पोएम्स हैं। और ये शुरुआती इसमें लिखा है, उन्होंने जो शुरुआत करी है, तलखियां का मतलब होता है बिटरनेस। तो उनकी जिंदगी की जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, जो बिटरनेस थी, जो चैलेंजेस थे, जो इश्यूज थे, वो सारा इन्होंने तलखियां में एक्सप्रेस किया है अपने आप को। और जो सबसे पहली लाइन पेज पर जो 2 लाइनें उन्होंने लिखी हैं कि ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, दुनिया ने तजुर्बात और हवादीस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा मैं। और इसमें कुछ 2-3 उनकी नज़में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, इनका मैं जस्ट कुछ नाम ले लेती हूँ। ताजमहल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, और अगर अतुल जी आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें। एक और है कभी कभी, जो फिल्मों में भी आ चुकी है, चकले काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, जो प्यासा में इस्तेमाल भी किया गया है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। वो एक्चुअली ओरिजिनल चकले करके इनकी कविता है, इनकी पोएम नज्म है तलखियां में। और एक है किसी को उदास देखकर, ये भी बहुत ही खूबसूरत नज्म है इनकी, और इसके कई लोगों ने नरेट भी किया है इस पोएम को, बहुत ही खूबसूरत है। अतुल जी, अगर आप इस किसी के बारे में अगर बात करना चाहें। बिल्कुल जी, मैं ताजमहल से, आपने क्योंकि जिक्र किया, ताजमहल वाज अ वेरी पॉपुलर ऑफ साहिर्स नज़्म्स। और साहिर साहब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी मुशायरे में अगर वो जाते थे तो उन्हें बिना ताजमहल सुनाए उनको बैठने नहीं दिया जाता था। जैसे कि कैफी साहब अगर जाते थे तो बिना औरत सुनाए उनको बैठने नहीं दिया जाता था। औरत वो नज़्म थी जो सुन के ही जो कैफी साहब का और उनकी पत्नी का इश्क शुरू हुआ था, और उनको उनकी पत्नी को ऐसा लगा कि वो मेरे लिए ही वो गा रहे हैं, मेरे लिए सुना रहे हैं स्टेज से, और वहां से ही उनको दिल दे बैठी थी, और वहां से पूरा रिश्ता शुरू हुआ। तो ताजमहल तो बड़ी फेमस हुई है, लेकिन ताजमहल की तरह की एक और चीज, मैं पहले ताजमहल की 2 लाइनें सुनाता हूँ, फिर मैं दूसरी चीज सुनाना चाहता हूँ। ताजमहल से शुरू करता हूँ, सिर्फ 2 लाइनें सुना के। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुमको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। और कहीं और मिला कर मुझसे क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। और ये बहुत बड़ी बात थी कि वो ताजमहल जो एक्चुअली तब तक देखा नहीं था, साहिर साहब ने वहाँ गए नहीं थे तब तक, लेकिन फिर भी ताजमहल के चर्चे तो किसने नहीं सुने थे, और उर्दू शायरी में किसने ताजमहल के बारे में नहीं। अगर आप देखें तो नज़ीर अकबराबादी जैसा, जो अकबराबाद जहाँ ताजमहल है, उस आगरे का रहने वाला, कब से वो उस ताजगंज के रोजा के बारे में अपनी नज़में कह चुका था, नज़ीर अकबराबादी 1700 कुछ में ही। तो उर्दू पोट्री में तो ताजमहल का बड़ा जिक्र था, ताजमहल की तस्वीरें भी उन्होंने देखी होंगी, फिर भी उन्होंने ताजमहल को एक नया एंगल दिया, और उस नए एंगल से ताजमहल को चाहने वाले भी और ताजमहल को तक ना पहुंचने वाले भी लोग बड़े खुश होते थे। लेकिन नूरजहां की मज़ार पर, तो ये ताजमहल तो हो गया, मुमताज महल का मज़ार हो गया, लेकिन नूरजहां की मज़ार पे क्या लिखते हैं, मैं वो जरूर नज़्म आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी कम सुनी गई है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। नूरजहां के मज़ार पर
पहलुए शाह में ये दुख्तरे जमहूर की कब्र, शाह के बादशाह के पहलू में एक जमहूर यानी पब्लिक की बेटी की कब्र, एक गरीब। अब जरा हिस्ट्री में देखिए कि नूरजहां से जहांगीर की शादी कैसे हुई थी। वो तो बेचारी ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन क्योंकि उनको इश्क हो गया तो उन्होंने मांग लिया और उसको देना ही पड़ा हस्बैंड को, अपनी शादीशुदा बीवी को। तो ये भी याद रखिएगा, जरा कहानी भी याद रखिएगा कि किस तरह एक शाह ने एक दूसरे की बीवी को लपक लिया। पहलुए शाह में दुख्तरे जमहूर की कब्र कितने गुमगश्ता फसानों का पता देती है, कितने खूरेज हकायक से उठाती है नकाब, कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है। कैसे मगरूर शहनशाहों की तस्कीन के लिए, कैसे मगरूर शहनशाहों की तस्कीन के लिए सालहा साल हसीनाओं के बाजार लगे, कैसी बहकी हुई नजरों की ताशुक के लिए सुर्ख महलों के जवां जिस्मों के अंबार लिए लगे। कैसे हर शाख से मुंह बंद महकती कलियां, मुंह बंद महंदी छोटी कलियां, कैसे हर शाख से मुंह बंद महकती कलियां नोच ली जाती थीं ताईज़ ने हरम की खातिर, और मुरझा के भी आजाद ना हो सकती थीं, और मुरझा के भी आजाद ना हो सकती थीं जिल्ले सुभान की उल्फत की भरम की खातिर। कैसे एक फर्द के ओठों की जरा सी जुम्बिश सर्द कर सकती थी बेलौस वफाओं के चिराग, लूट सकती थी दमकते हुए हाथों का सुहाग, तोड़ सकती थी मैं इश्क के लबरेज आयाग। सहमी सहमी सी फजाओं में ये वीरा मरकत, सहमी सहमी सी फजाओं में ये वीरा मरकत इतना खामोश है, फरियाद गुना हो जैसे सर्द शाखों से हवा चीख रही है ऐसे, रूह तकसीद वफा मरसिया हो जैसे। तू मेरी जान मुझे हैरत व हसरत से न देख, तू मेरी जान मुझे हैरत व हसरत से न देख, हम में कोई भी जहां नूर और जहांगीर नहीं, हम में कोई भी जहां नूर और जहांगीर नहीं, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है। नसी वो कितनी कमाल की बात कह रहे हैं अपनी प्रेमिका से, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथों में मेरा हाथ है जंजीर नहीं। तो ये जो बात है पूरी कितनी खूबसूरत है। क्यों कहते हैं साथ का ये मतलब नहीं कि तुमने अगर एक बार साथ पकड़ लिया और आज वैसे भी करवा चौथ का दिन है तो अब तुम छुड़ा नहीं सकती हो। तेरे हाथों में मेरा हाथ है जंजीर नहीं, ये एक बड़ी बात। और मुझे कहीं ना कहीं ये ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत अपने आप में लगती है। मैं विद्या जी को इनवाइट करता हूं, क्योंकि जहां अतुल जी ने छोड़ा वहीं से विद्या जी शुरू होता है। क्योंकि विद्या जी को जितना मैं जानता हूं, विद्या जी एक म्यूजिशियन होने के साथ साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट भी हैं। मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनसे बात की है, इसलिए मैं जानता हूं। और हमारे यहाँ इस वक्त पैनल में 2 फेमिनिस्ट मौजूद हैं, एटलीस्ट 2। विद्या जी, आप को मैं ये चाहूंगा कि साहिर का एक बहुत बड़ा उनका एक प्याम हिंदी फिल्म लिरिक्स में है। एंड आपसे हम ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने पसंद के कोई गाना जो आपको लगता है आप गाना चाहती हो, साहिर के इतने तमाम लिरिक्स के रेंज में से वो आप चूज करके हमको सुनाएं, हमको ऑब्लाइज करें। yes. लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, एक प्रेफेस और एक डिस्क्लेमर कि मेरी खुद की तालीम और संगीत तो खैर क्लासिकल सेमी क्लासिकल वहां पर है, लेकिन जब इनकी चीजों का रेंज हम देखते हैं तो थोड़ा सा मन ललचा रहा है कि कोई एक फिल्मी गाना गुनगुनाने की कोशिश जरूर। और उनकी कई सारी चीजें, क्या मतलब क्या खूबसूरत संगीत, क्या द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेकिंग अ फिल्म सॉन्ग एंड देन फिल्मिंग इट, वो भी एक दैट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी इन इटसेल्फ। और अतुल भाई शायद इस पर थोड़ा सा यू मे थ्रो लाइट ऑन इट लेटर, मे बी कमिंग फ्रॉम द विजुअल वर्ल्ड योरसेल्फ। बट ये जो गाना मैं जिसकी चंद लाइनें पेश करना चाहूंगी, ये भी बहुत ही खूबसूरती से मन्नाडी साहब ने गाया है इसको। रोशन साहब का संगीत है। और फिल्म में जब हम देखते हैं तो इट हैज अ वेरी कैजुअल फील टू इट, लेकिन गाने में जो वजन है, जो एक उसको निभाया है उन्होंने, खैर it's the kind of thing that would work beautifully with some संगत। पर फिर भी मैं
कुछ ऐसी कुछ लाइनें आपको गुनगुना के सुना रही हूँ। और बकायदा राग पर आधारित है, राग कीरवानी पर है, जहां तक मुझे समझ में आया है ये। तो हाँ, क्या बात है। हाँ, लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन से कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन से कोरी चुनरिया, आ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। वाह, थैंक यू। विद्या जी, आपका गाना और आपका, जब बेगम अख्तर गाना गाती थी तो कैफी साहब ये कहते थे कि जब बेगम अख्तर गाती हैं तो गजल सुनी भी जाती है और गजल देखी भी जाती है। वाह। तो हम आपके लिए भी यही कह सकते हैं कि जब आप गाती हैं तो गजल सुनी भी जाती है और गजल देखी भी जाती है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बट अतुल जी, ये जैसे ये गाना था जी, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी पोएट्स, आप ये देखेंगे कि एक ही लाइन को दो प्लेन्स में लिखा गया है। जी, ये एक आशिक और माशुका के प्रेम की भी बात है, और ये डेफिनेटली एक ईश्वर के प्रति जो प्रेम है और जी, वो भी है। तो ये एक लेवल पे ये एथेरियल, मतलब पार्थिव प्रेम की बात कही जा रही है, और इसमें गीता की फिलॉसफी भी पूरी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और दैट आई थिंक मेक्स साहिर। जैसे साहिर का हमने शुरू में देखा कि साहिर एक रोमांटिक पोएट थे। बल्कि मैं यहाँ कहना चाहूंगा पार्थसारथी जी, दैट नॉट ओनली मेक्स साहिर, दैट टेक्स साहिर क्लोजर टू कबीर। I mean, ये तो क्योंकि ये जो लागा चुनरी में दाग जो है, ये कॉन्सेप्ट कबीर निभा चुके हैं अपने यहाँ, और वो हमको दिखाई देता है कि कैसे वो कबीर से टेक ऑफ करके और उसको एक फिल्म की सिचुएशन में लेके आते हैं और एक नया गाना बना देते हैं। तो कबीर का कैसे वो एक नया इस्तेमाल करते हैं, कैसे नया प्रयोग करते हैं। और कबीर के यहाँ या कबीर की बेटी कमाली के यहाँ आपको ये दोनों चीजें दिखाई देती हैं। इसको आपने कहा कि दोनों तरह का इश्क जो है वो ईश्वर का प्रेम जो है, और वो जो आपने इसको कहा कि जो नश्वर प्रेम जो है, एक बदन से जो प्रेम है वो भी दिखाई देता है। वो चाहे वो फेमस उनका फेमिनिज्म की क्योंकि बात हो रही, विद्या जी हमारे साथ में हैं, और वो प्रेम महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकल गए मैं न लड़ी थी। तो वहां पे भी दिखाई देता। तो वही बात है, कहाँ एक कॉन्क्रीट इमेजरी है कि रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी। वो 10 दरवाजे वो भी हैं जहां से कि फिजिकल वाले सैया निकल गए हैं, वो भी आज के दिन और वो करवा चौथ के दिन, और वो दूसरा वाला भी है
वो वाला सैया जो प्राण है वो भी किस दरवाजे से निकल गया है, जो 10 द्वार जो होते हैं हमारे, तो वो इस दोनों चीजों को मिलाना, और यहाँ पे कैसे साहिर उसको लेके आ जाते हैं। और इसीलिए वो ग्रेट पोएट हैं कि वो सुनने के लेवल पे, वो फिल्म में जरूर कुछ हो सकता है कि दाढ़ी निकल रही है और कॉमिक गाना चल रहा है, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कई सारे मेटाफर्स हैं। हाँ। तो वो उस सिचुएशन को निभाते हुए भी किस तरह से, जी बिल्कुल बिल्कुल, कई संदर्भों में इनका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साहिर जैसे जो शायर हैं उनके लिए तो ये कहा ही जा सकता है, he must have thought in myriad ways even when he was writing सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, God knows what all he was thinking about. But अतुल जी, साहिर्स लव एंड रोमांस फॉर अ लवर जो पोएट्री थी, जो आप जिसको हम कह रहे हैं नश्वर प्रेम की पोएट्री, दैट लेटर इवॉल्व्ड इनटू अ लव फॉर एंटायर मैनकाइंड। यस, और उनकी पोएट्री फिर एक अलग लेवल पे या एक अलग प्लेन पे चलती है जब वो लिखते हैं चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, या वो सुबह कभी तो आएगी, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट राइटिंग्स हैं शायद हिंदी फिल्म्स में, या जिन्हें नाज़ हिंद पे वो कहाँ है। तो हम देखते हैं कि साहिर एक नश्वर प्रेम, एक मैन वुमन के प्रेम से हटकर टोटल मैनकाइंड के प्रेम की तरफ चलते हैं, और वो रोमांस के परिभाषा को ही बदल देते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि साहिर उसके बाद चेंज हो गए और साहिर रोमांटिक पोएट नहीं रहे, या वो उनकी पोएट्री परचम की पोएट्री बन के रह गई? हाउ डू यू सी साहिर्स एवोल्यूशन एज अ पोएट फ्रॉम तलखियां टू परछाइयां फॉर एग्जांपल? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि परचम की पोएट्री बन के रह गई, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और हालांकि ये कुछ लोगों ने इल्ज़ाम साहिर पे ज़रूर लगाया कि भाई साहिर को शायर क्यों माना जाए, और वो तो परचम उठाने वाले थे, अब ना तो परचम ही उठा और ना बरबत ही हुई, जो बहुत से लोगों ने इस तरह का भी इल्ज़ाम उन पे लगाया है। तो लेकिन सवाल ये है कि धीरे धीरे साहिर, लेट अस एग्री टू इट, कि मैं एक नज्म उनकी पढ़ना चाहूंगा, फनकार। साहिर बहुत कॉन्शियसली लिरिसिस्ट बनने जाते हैं, और ये एक पूरा मूवमेंट था फिल्म जैसे नए माध्यम से जुड़ने का। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में सिनेमा तो शुरू हो जाता है सन 13 से, सन 32 से साउंड भी आ जाता है सिनेमा में, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग, इंक्लूडिंग हमारी सदी के जो सबसे बड़े भारत के महानायक हैं महात्मा गांधी भी, वो भी फिल्मों को कुछ कमतर चीज समझते हैं। और ख्वाजा अहमद अब्बास जैसा आदमी सन 36 में एक लेटर लिखता है महात्मा गांधी को, जहां कहता है कि बापू जी, हो सकता है आपने अपनी पब्लिक मीटिंग्स में आते जाते वक्त कुछ गंदे पोस्टर स्टेशनों के पास देख लिए हों, और अपनी फिल्म का तस्वुर आपने वहीं से बना लिया। फिल्में ऐसी नहीं है, फिल्में दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। प्लीज टेक अ रीलुक एट द मीडियम ऑफ सिनेमा, and this the strength of medium of cinema was understood by the leftists, and leftists consciously, many people of the Progressive Writers Association consciously came to Bombay because the cinema existed there. Also the movement exists there because of the existence of so many mills there, and the leftist movement, and S.A. Dange being there, who was one of the first people to have done these unions in the mills, etc. तो ये सबके सब लोग ग्रेविटेट करते हैं बॉम्बे में, चाहे कैफी साहब हो, चाहे वो जानिसार अख्तर साहब हो, चाहे वो खुद हमारे आज के हीरो साहिर साहब हो, और बहुत सारे लोग वहां पहुंचते हैं और वो बम्बई में आकर के फिल्मों को अपना माध्यम बनाते हैं। तो ये भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन जानते हैं कि फिल्मों में उनको कुछ अलग तरह से काम करना है। फिल्म में यू कांट हैव टोटल फ्रीडम, बिकॉज आफ्टर ऑल कोई एक और आदमी फिल्म की कहानी लिख रहा, आपको उस कहानी के हिसाब से गाने लिखने हैं। लेकिन एक नज्म मैं पढ़ना चाहूंगा साहिर की, जहां मेरे ख्याल से वो जाना भी चाहते हैं फिल्मों में, और फिल्मों में जाने से किस तरह से वो परेशान भी हैं। फनकार नाम है, हालांकि पुरानी तलखियों से है नज्म, मगर फिर भी। मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया। मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूं। आज दुकान पे नीलाम उठेगा उनका, तूने जिन गीतों पर रखी थी मोहब्बत की असास। आज चांदी की तराजू में तुलेगी हर चीज, मेरे अफकार, मेरी शायरी, मेरा एहसास।
जो तेरी जात से मंसूब थे उन गीतों को मुफलिसी जिन्स बनाने पे उतर आई, विच इज नॉट टोटली ट्रू इन केस ऑफ साहिर। ऐसा नहीं था कि सिर्फ गरीबी की वजह से मुंबई भाग गए थे, वो जाना चाहते देखने वीडियो, लेकिन मगर फिर भी ही नोज द रियलिटी। जो तेरी जात से मंसूब थे उन गीतों को मुफलिसी जिन्स बनाने पे उतर आई है, भूख तेरे रुखे रंगी के फसाने की एवज चंद आशियाए जरूरत की तन्माई है। देख इस अर्जगाहे मेहनतो सरमाया में मेरे नगमे भी मेरे पास नहीं रह सकते, मेरे नगमे भी मेरे पास नहीं रह सकते, वैसे नहीं रह सकता जैसे मैं चाहता था उनको। तेरे जलवे किसी जरदार की मीरास सही, तेरे खाके भी मेरे पास नहीं रह सकते। आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूं मैंने, जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे। तो जब वो बाजार में अपने गीतों को एक बार ले आते हैं, so he also knows that he will have to make some compromises. Now, how it's a question of how little you compromise, how you find ways, how you find a middle path so that you are in the bazaar and yet you don't sell your soul. And that's why he continues to be a people's poet despite writing for all sorts of situations and peoples. I mean, there are some songs which we must also discuss maybe towards the end of the program and not at the beginning, that how he is forced to write something very, very banal. तो ऐसा भी नहीं है कि उनको बनाल नहीं लिखना पड़ेगा आपको अगर आप कर रहे हैं। अगर मेरे ख्याल से उन्होंने जब से B.R. चोपड़ा साहब का और यश चोपड़ा साहब का एसोसिएशन शुरू हुआ था, उन्होंने उनकी सारी फिल्में लिखी, सिर्फ एक फिल्म नहीं लिखी उन्होंने, जिसका नाम था साहब, जिसका नाम था पति पत्नी और वो। और पति पत्नी और वो के लिए शायद उन्होंने गाने इसलिए लिखे होंगे कि पति पत्नी और वो के गाने अगर आप सुन लें, जब उनके पास गए होंगे चोपड़ाज और कहा होगा कि भाई हमारे गाने की सिचुएशन ऐसी कि बाथरूम में आदमी नहा रहा है और कह रहा है कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए फिर भी गाना चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई सब तुम जरूर गाओ मगर मैं नहीं गाऊंगा ऐसे गाने। तो सिर्फ यही फिल्म है जो वो नहीं लिखते हैं, बाकी सारी फिल्में लिखते हैं वो अपनी मौत तक। तो ये भी, लेकिन फिर भी उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। अब यश जी के साथ ही गापू जी गम गम की जो बात, अब ये लाइन ये साहिर की लाइन नहीं है, लेकिन अब जब यश जी लगे हैं कि नहीं ये लाइन तो मेरा हीरो कहीं और भी बोल रहा है फिल्म में, तो वो तो डायलॉग के तौर पे बोल चुका है, गापू जी कम कम किसी की कम कम, और पता नहीं इसके मतलब क्या है। तो लेकिन जो भी है, तो अब ये क्योंकि मेरा हीरो कहीं बोल चुका है नीतू सिंह से, मेरा चिंटू नीतू सिंह से ये बात बोल चुका है, तो आपको भी गाने में डालनी पड़ेगी। तो पहली लाइन तो विली नीली बनी जाती है गापू जी कम, फिर उसके बाद में साहिर आ जाते हैं कि सनम हम दोनों साथ रहें जन्म जन्म, वो सब आ जाएगा, साहिर भी आ जाएगा, लेकिन पहली लाइन से तो ये कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं। इसीलिए फनकार और इसीलिए मैं अपने गीतों को बाजार में ले आया हूँ ये बात। हाँ, तो अतुल जी आप जो कह रहे हैं ना, ये किताब में इसका जिक्र है, मैं भी कुछ किताब भी शेयर कर देती हूँ साहिर पे, जो किताबें हैं उसमें इसी सिचुएशन का जिक्र है। और उसमें है कि ये गापू जी गम गम साहिर ने नहीं लिखा है, उन्होंने अपनी जो गाना लिखा और ये बाद में यश चोपड़ा ने, जो चोपड़ाज ने, उन्होंने ऐड कर दिया। वेरी अपसेट, वो बड़े दुखी थे, बड़े नाराज थे उस दिन की ये कैसे कर दिया। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब तो चलना पड़ेगा। मैं कुछ किताबें हैं जो हम लोगों ने साहिर पे, दो तरह की किताबें जो साहिर ने खुद लिखी हैं और वो किताबें जो साहिर पर लिखी गई हैं, वो दोनों किताबें मैं आपको जल्दी से शेयर कर देती हूँ, एटलीस्ट अगर आप पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं। तलखियां की बात हम कर चुके हैं। परछाइयां दूसरी इनकी गैर फिल्मी किताब है, और परछाइयां का मतलब है सिलुएट या शैडो, या आप समझते होंगे। इसमें बहुत ही डिफरेंट तरीके से साहिर ने लिखा है। इसमें लव फॉर मैनकाइंड वाली जो बात है, इट्स अ स्टोरी ऑफ two lovers, a very tragic love story, and manifesto anti-war anti-war manifesto weaved together in one. So basically इसमें anti-war की बात भी कही गई है, और एक फ्रंट में जो स्टोरी चल रही है, ये दो लवर्स की स्टोरी चल रही है जो बिछड़ जाते हैं at the backdrop of war. ये बहुत ही खूबसूरत है, और ये अगर आपको मिल जाए आप जरूर पढ़िएगा। इसकी बस एक लाइन, दो चार लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और जावेद अख्तर के आवाज में यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, जो उन्होंने खुद पढ़ा है। ये कुछ लाइनें हैं और जो बहुत ही खूबसूरत है। तुम आज हजारों मील यहाँ से दूर कहीं तन्हाई में, या बज़्मे तरब आराई में, मेरे सपने बुनती होगी बैठी आगोश पराई में, और मैं सीने में गम लेकर दिन रात मशक्कत करता हूँ, जीने की खातिर मरता हूँ, जीने की खातिर मरता हूँ। इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटन, जरूर पढ़िएगा इस किताब को। दूसरा है
ये आओ कि कोई ख्वाब बुने, ये तीसरी इनकी नॉन फिल्मी किताब आई थी। ये इसमें कुछ रिपीटिशंस भी हैं और ये भी इज मोर लाइक अ रेवोल्यूशनरी एंड मोर सोशली कॉन्शियस इसमें पोएम्स हैं। चौथी है गाता जाए बंजारा। इसमें बेसिकली उन्होंने जो जो गाने फिल्मों के लिए लिखे हैं उनका एक कलेक्शन है। ये किताब भी पढ़ने लायक है अगर आप सारे फिल्मी गानों का एक कलेक्शन एक साथ देखना चाहते हैं। इसके अलावा कई किताबें हैं जो साहिर पर लिखी गई हैं और इसमें सबसे बेस्ट जो मुझे अभी तक लगी जो मैंने पढ़ी है वो है साहिर लुधियानवी द पीपल्स पोएट बाय अक्षय मनवानी। आई थिंक इसमें कई जो आज डिस्कशन हम लोग बातें कर रहे हैं साहिर की बचपन से लेकर के बाद में उनकी किस तरह की उन्होंने पोएम्स लिखे, किस तरीके की उन्होंने फिल्मी गाने लिखे, उनका कोलैबोरेशन एस.डी. बर्मन के साथ कैसा था, यश चोपड़ा के साथ में कैसा था, फिर बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स खयाम या रवि या जयदेव इन लोगों के साथ कैसा था, उनका रिलेशनशिप कैफी आजमी के साथ कैसा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं इसमें। ये किताब मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूंगी। ये किताब है इन द ईयर ऑफ साहिर 2021 बाय नसरीन मुन्नी कबीर। ये सर ने पढ़ी है। सर अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें। ये किताब एक्चुअली साहिर के सेंटेनरी पे निकाली गई है एंड इट इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ जो साहिर के साथ जिन्होंने वक्त गुजारा है, जो साहिर के साथ रहे हैं, उनके रिकलेक्शंस हैं उसमें, एज वेल एज पीपल जो बाकी साहिर के समय नहीं भी रहे हों पर आज हिंदी फिल्म लिरिक्स में या पोएट्री में काम करते हैं, उन सब के कलेक्शन का इसमें एक उन सब के ट्रिब्यूट्स का कलेक्शन है। अच्छी लिखी है और कुछ लोगों ने तो बहुत ही खूबसूरती से, जैसे जावेद जी ने बहुत खूबसूरती से इसमें लिखा, यश चोपड़ा जी का वर्जन है, तो बहुतों ने ट्रिब्यूट पे किया है। जब तुमने परछाइयां नाम की उनकी किताब का जिक्र किया तो मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को, शायद बहुतों को पता भी हो, कि साहिर के अपने बंगले का नाम भी परछाइयां था। साहिर के जुहू में जो उनका अपना घर था उन्होंने अपनी किताब के नाम पे परछाइयां ही रखी थी जी। और मैं भी एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा क्योंकि जावेद साहब का नाम यहाँ पे आया है और जावेद साहब का बड़ा करीबी रिश्ता था साहिर साहब से। जावेद साहब 19 साल की उम्र में बम्बई आ गए थे और काम नहीं था और उनके वालिद साहब जानिसार अख्तर साहब बम्बई में रहते थे, लेकिन बाप बेटे का रिश्ता ऐसा नहीं था कि वो अपने वालिद साहब के पास जाएं। तो उनके जो फॉस्टर फादर बम्बई में थे वो साहिर साहब ही थे, वो साहिर साहब के पास ही जाते थे, साहिर साहब के साथ ही एक तरह से कहीं रहते थे, दिन बिताते थे, खाना खाते थे जब पैसा नहीं होता था। और कभी कभार जब उनके वालिद साहब से जब किसी बात पे झगड़ा हो गया तो साहिर पे जाके निकालते थे गुस्सा कि कैसे आदमी आपका दोस्त है और कैसा है, सारा गुस्सा उन्हीं पे निकालते थे। और कभी कभी साहिर कहते थे भाई अब तुम दोपहर का खाना खाओगे क्योंकि आज जानिसार अख्तर आने वाला है खाने पे, तो वो चुपचाप निकल भी जाते थे। और निकलने के पहले एक बड़ा अच्छा किस्सा जो है लिरिसिस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी बंगले में जहाँ पहले वर्सोवा में जहाँ पहले रहते थे बंगला बनाने के पहले साहिर साहब, वहां पे ही एक छोटे से कमरे में गुलजार साहब भी रहा करते थे और गुलजार साहब ने बहुत सी चीजों को करीब से देखा था। और गुलजार साहब लिखते हैं एक अपने लेख में जिसका नाम है जादू और साहिर। जादू का नाम भी मतलब वही होता है जो साहिर का होता है, साहिर का मतलब जादूगर और जादू का मतलब जादू मतलब जावेद अख्तर। और वो लिखते हैं कि एक बार वो आया, बड़ा खफा था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसने हमारे गुस्से के खाना भी नहीं खाया। जब पता चला कि उसके वालिद वहां आने वाले हैं खाना खाने, तो साहिर ने चुपचाप, हिम्मत नहीं थी साहिर की क्योंकि बड़ा खुददार था वो लड़का जावेद अख्तर, तो साहिर ने एक 100 का नोट निकाल के रख दिया और कहा भाई ये तुम वापस कर देना, लेकिन चाहो तो ले जाओ, ये नहीं करेंगे, ले भी लो। और जावेद अख्तर ने झपट के नोट उठा भी लिया और कहा मगर कभी वापस नहीं करूंगा, कभी वापस नहीं करूंगा। और वो कभी उसके बाद में जावेद अख्तर ने बहुत पैसे कमाए मगर कभी वो नोट जावेद अख्तर ने उनको 100 रुपए वापस नहीं किए। मगर जिस दिन साहिर साहब का इंतकाल हुआ अपने एक दोस्त के घर पे, कपूर साहब के घर पे, डॉक्टर कपूर के घर पे ताश खेलते खेलते, और खबर जावेद अख्तर को पहुंची तो जावेद अख्तर के पास गाड़ी नहीं थी, वो एक टैक्सी लेके वहां दौड़ते हुए पहुंचे और लाश को उन्होंने अपने आगोश में लिया और फूट फूट कर रोने लगे और रात भर वहीं बैठे लाश के साथ रोते रहे। सुबह जब और लोग भी आ गए और इंतजाम होने लगे तो जावेद अख्तर नीचे उतरे, उन्होंने देखा कि वो टैक्सी वाला वहीं खड़ा था, उसको पैसा देना भूल गए थे और बोले अरे तुम यहीं हो अभी तक? उसने कहा हाँ साहब। अरे तुम चले जाते मुझसे पैसे ले लेते। तो उसने कहा नहीं साहब पैसे की बात नहीं है, इतना बड़ा आदमी मरा है तो मैं भी रुक गया। उन्होंने कहा नहीं तुम पैसे तो अपने लो। और जेब खोल के जावेद अख्तर ने उनको 100 रुपए टैक्सी वाले को दिए और देते समय कहा कि ये आदमी साहिर मर गया मगर अपने 100 रुपए मुझसे लेके ही गया। और ये कह के जावेद अख्तर फिर फूट फूट के रोने लगे।
तो ये 100 रुपए का जो किस्सा है, और इसी 100 रुपए के किस्से का जो उधार था, जो उसका सूद चुकाना था, जावेद अख्तर साहब चाहते थे कि इस साल सन 2021 में साहिर साहब की याद में उतना ही बड़ा जलसा हो, उतना ही बड़ा जश्न हो जैसे कि कैफी साहब की याद में 2 साल पहले किया गया था। और इस साल जावेद साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि हम लोग परछाइयों पे एक स्टेज शो करेंगे और अतुल जी आप उसको डायरेक्ट करेंगे। और उसकी हमने तैयारी भी शुरू की थी, ये पिछले साल से शुरू कर दी थी, 2020 से। बट देन एज यू नो द न्यू सेइंग गोज दैट मैन प्रपोजेस एंड कोरोना डिस्पोजेस। तो अब गॉड नहीं रहा बीच में, साहिर वाले में गॉड आना भी नहीं चाहिए। तो मैन प्रपोजेस एंड कोरोना डिस्पोजेस, और ये शो अभी तक तो नहीं हो सका है। हम लोग कभी कोशिश करेंगे कि परछाइयों पे एक स्टेज शो हम करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके आगे अगली किताब है साहिर अ लिटरेरी पोर्ट्रेट बाय सुरिंदर देओल। ये लेटेस्ट ही किताब आई है और इसको भी मैंने पढ़ा तो नहीं है, सर ने भी शायद नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका हमने समरी देखी थी और इसके इनके ऑथर के साथ पे एक कॉन्वर्सेशन भी पढ़ा है। इट सीम्स लाइक अ वेरी ओवरऑल एंड काफी उनकी पोइट्री, उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और उनके पोइट्रीज को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हुआ है इस किताब में, ये भी शायद आप पढ़ना चाहें। इसके अलावा है साहिर लुधियानवी और उनकी शायरी बाय प्रकाश पंडित। सर ने ये पढ़ी हुई है, सर इस पर कुछ कहना चाहें? मैं और अतुल जी दोनों ही प्रकाश पंडित के बहुत बड़े फैन हैं। प्रकाश पंडित एक ऐसे इंसान हैं जिनकी इकलौते उनकी वजह से एक पूरा जनरेशन हिंदुस्तान में उर्दू के नामचीन पोएट्स को देवनागरी स्क्रिप्ट में पढ़वाया। हम लोग पर्शियन स्क्रिप्ट में उर्दू नहीं पढ़ना जानते थे। ये प्रकाश पंडित ही थे जिनकी वजह से साहिर, अकबर इलाहाबादी, मजाज, कैफी, इन सब की पोएट्री को हमने देवनागरी स्क्रिप्ट में पढ़ा। तो आई थिंक प्रकाश पंडित जी का जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उर्दू पोएट्री को इस जनरेशन के लोगों के लिए जिंदा रखने के लिए। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जी, इसके अलावा ये किताब है साहिर, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ साहिर्स लखनवीज पॉपुलर उर्दू कपलेट्स बाय स्वाति सानी। ये भी आप पढ़ सकते हैं। और देयर इज अनदर वन, जब धरती नगमे गाएगी, इसके भी काफी अच्छे रिव्यूज हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। आशा प्रभात ने इसको लिखा है। या दीज आर सम ऑफ द बुक्स। एक चीज मैं और जोड़ दूं, अगर समीना आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि आपने जो थे आशा प्रभात की बात की, धरती नगमे गाएगी। आशा प्रभात ने हिंदी में पूरा साहिर का समग्र, यानी पूरा कलेक्टेड वर्क्स ऑफ साहिर भी छापा है। इसका नाम है साहिर समग्र, और ये भी उन्हीं की किताब है। मैं ये भी आप लोगों को दिखा दूं। ये भी जो नाम आपने लिया ऑथर का, उन्हीं की किताब है, जिसमें साहिर की सारी शायरी इंक्लूडिंग तलखियां, इंक्लूडिंग परछाइयां, इंक्लूडिंग अदर चीजें, और फिल्मी गाने भी सबके सब आपको एक साथ एक जगह मिल जाते हैं और देवनागरी स्क्रिप्ट में मिल जाते हैं। जी। आई विल कम टू विद्या जी अगेन। साहिर के जो लिरिक्स हैं उसका जो रेंज है उस पर हमने जिक्र किया। हमने ये भी जिक्र किया कि किस तरीके से उन्होंने ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक, हिंदी फिल्म के लिए ऑल टाइप्स ऑफ लिरिक्स लिखे हैं। बट साहिर के लिरिक्स फिल्म के लिरिसिस्ट में खास जगह इसलिए है क्योंकि हम और आप जानते हैं कि उस वक्त ज्यादातर म्यूजिक पहले दिया जाता था और लिरिसिस्ट को कहा जाता था कि आप उस पर अब शब्द पिरो दीजिए। ये साहिर थे जिनकी नज़में इतनी पॉपुलर थी कि कई बार उन नज़मों को पिकअप किया गया, जैसे मताए गैर को ही ले लीजिए, कभी कभी को ले लीजिए, या चकले को ले लीजिए, और उनको फिर म्यूजिक पिरोया गया। और साहिर ने फिर उन पोएट्री को हिंदी पिक्चरों के लिए थोड़ा चेंज भी किया। उन्होंने लिरिक्स को थोड़ा हल्का बनाया या सिंपल बनाया, जैसे कि आम जनता उसको समझ सके। एंड दिस आई थिंक वाज ए ग्रेट थिंग, बिकॉज पहली बार लिरिक्सिस्ट के इंपॉर्टेंस को समझा गया। और साहिर ने इस बात को बिल्कुल डंके की चोट पे कहा कि म्यूजिक डायरेक्टर से 1 रुपए ज्यादा लिरिसिस्ट को मिलना चाहिए। और इस वजह से भी उनके कई झगड़े म्यूजिक कंपोजर्स के साथ हुए। और शायद एस.डी. बर्मन के साथ साहिर के जो ट्रेजिक फॉल ऑफ था, शायद कहीं उसकी वजह से रहा होगा। और इसकी वजह से हमारे जैसे लोगों को तो बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि साहिर और एस.डी. बर्मन के कॉम्बिनेशन में नवकेतन बैनर के जो गाने थे वो शायद एस.डी. के भी शायद बेस्ट गाने थे और शायद साहिर के भी बेस्ट गाने थे, अगर गुरुदत्त के गाने को छोड़ दिया जाए तो। बट साहिर और एस.डी. बर्मन के फॉल ऑफ के बाद एक फिल्म आई
जिसमें नवकेतन में साहिर ने फिर लिखा, और वो फिल्म थी हम दोनों। क्योंकि हम दोनों में एस.डी. बर्मन के परमिशन से उनके असिस्टेंट जयदेव को म्यूजिक के लिए मौका मिला, और साहिर और जयदेव बहुत जिगरी दोस्त थे, और देवानंद ने साहिर से बड़ी रिलक्टेंटली मुंह मोड़ा था, बिकॉज एस.डी. बर्मन ने बिल्कुल तय कर रखा था कि साहिर के साथ वो नहीं काम करेंगे, एंड देवानंद हैड टू चूज बिटवीन वन ऑफ द टू, एंड ही चोज एस.डी. बर्मन। बट जैसे ही मौका मिला हम दोनों में, जब एस.डी. बर्मन ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, अब जयदेव के साथ आगे चलिए, तो देवानंद वापस साहिर के पास आते हैं, और फिर साहिर और जयदेव के साथ हम दोनों के सारे गाने आते हैं, विच आर ऑल आई थिंक आर इमॉर्टल सॉन्ग्स। तो मैं विद्या जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हम दोनों के कोई गाने को लें, चूज करें जो साहिर के व्यापकता को दिखाता है एज ए हिंदी फिल्म लिरिसिस्ट। एक्चुअली किसी ने सवाल भी पूछा था, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू से दैट ये जो आपने कहा कि जयदेव के पास आए, आई जस्ट वांट टू से दैट इट वाज सच एन इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट टाइम for film music also, in terms the time when all these people, Sahir, Majroo, Kaifi Saab, I mean the kind of music and the way it melted with the lyrics so beautifully, और जो जिस तरह से हम उनको आज भी याद करते हैं, उसमें वाकई it's not an exaggeration, I think, to call it like a golden time for music and lyric. और आपने बिल्कुल सही कहा कि lyricist को जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो बिल्कुल साहिर साहब ने उसको ही established the need for it. And Jaydev Saab himself, comes from a very interesting, although the discussion is not on him, but still just to say that he came into the world of film music also through his introduction to Ali Akbar Khan Saab, So these are all very, very important connections that we see to the, when you listen to the beauty of it, you understand why sometimes, because there is a sheer creative genius involved at so many levels. एक सवाल यहाँ किसी जनाब ने काफी देर से पूछा हुआ था कि उनके भजनों पर भी कुछ बोलना चाहिए। तो the thing is that साहिर साहब ने कई सारे bhajan likhe hain. We know that so many of his bhajans became popular, so much so that in the year 1971, Odeon Records actually publishes a vinyl record of just a collection of his bhajans. Each one of those is really क्या ही कहें, मतलब एक एक चीज जो है कितनी इसमें खूबसूरत। And just look at the one second, I'm just trying to look at the collection of the bhajans in that LP. One of my favorites also is actually this one, Manre Tu Kahi Nadhir Dhare. It's such a beautiful bhajan. Even Ganga Tera Pani Amrit, Prabhu Tero Naam, each one of them again with Jaydev, so lovely. But since we are discussing Hum Dono, I think one of the most iconic bhajans, which is also, I think, जैसा अतुल साहब ने कहा कि पहले सेराली यानी साहिरी हो गया, so in this bhajan, I think the way he brings out this idea of क्या बात, वाह, this Allah Tero Naam, which is just so enduring. Allah Tero Naam, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम, मांगोगा सिंदूर न छूटे, मांगोगा सिंदूर न छूटे, माँ बहनों की आस न टूटे, देह बिना भटके न
मति दे भगवान लाते वो सारे जग के रखवाले, वो सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों ओ बलवानों, दे ज्ञान सबको सन्मति दे भगवान लाके। Thank you. Saraswati ji, if you allow me, I would like to take off from where Vidya ji has left. And often people are kind of amazed कि साहिर जैसा एक मुसलमान आदमी या साहिर जैसा एक सेकुलर आदमी इतने अच्छे भजन कैसे लिख सकता है। और वैसे ये लाइनें साहिर साहब ने किसी और के लिए लिखी हैं, किसके लिए लिखी हैं मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन शायद कहीं इसमें साहिर की भी पर्सनालिटी झलकती है। और साहिर साहब को ये श्रद्धांजलि मैं उन्हीं के शब्दों द्वारा देता हूँ। और विद्या जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, वो हर एक दीन से मुनकिर था, हर एक धर्म से दूर। वो हर एक दीन से मुनकिर था, हर एक धर्म से दूर, फिर भी हर दीन हर एक धर्म का गमखार रहा। फिर भी हर दीन हर एक धर्म का गमखार रहा। सारी कौमों के गुनाहों का कड़ा बोझ लिए उम्र भर सूरत ईसा जो सरेदार रहा। जिसने इंसानों की तकसीम के सदमे झेले, फिर भी इंसान की उखुव्वत का परस्तार रहा। जिसकी नजरों में था एक आलमी तहजीब का ख्वाब, जिसका हर सांस नए अहद का मेहार रहा। जिसने जरदार मईशत की गवारा न किया, जिसने जरदार मईशत को, जिसने पैसे वालों की के अधिकार को गवारा न किया, जिसने जरदार मईशत को गवारा न किया, जिसको आईने मुसाफत पे इसरार रहा। उसके फरमानों की ऐलानों की ताजीम करो, राख तकसीम की अरमान भी तकसीम करो। जिस्म की मौत, यानी जिसकी राख को तुमने बांटा है, आज उसके संदेश को भी बांटो। देश देश के कोने कोने तक, हर नदी तक, हर पहाड़ तक, हर मैदान तक पहुंचाओ। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, होठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। ये साहिर साहब लिख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की मौत पर, और कितनी खूबसूरती से वो कह रहे हैं कि जो हर एक दीन हर एक धर्म से था दूर, फिर भी हर एक दीन हर धर्म का गमखार रहा। यही कहीं साहिर की भी पोजीशन है कि वो खुद पर्सनली, कहीं नहीं ऐसा मिलता है कि साहिर साहब रोजे रखते थे और दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे या एक करते थे, ऐसा कहीं नहीं, जिक्र ही नहीं मिलता है। उनके दोस्तों ने भी, प्रकाश पंडित का भी हम लोगों ने नाम लिया था, वो सिर्फ ना उन पे किताब लिखने वाले हैं बल्कि उनके करीबी दोस्त भी हैं जिन्होंने कई साल उनके साथ गुजारे हैं, वो भी कहीं इस बात का जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब भजन लिखने पे आता है तो वो हर दीन हर एक धर्म का कितना गमखार है, कितना करीबी है, कितना उनको कितना समझता है, कितना उसने हिंदुस्तान को अपने आप में जज्ब किया हुआ है, एसिमिलेट किया हुआ है, ये भी हमको साहिर में दिखता है। All good things have to come to an end, but before I come to Atul ji and Vidya ji for their last comments, मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था हमारे दोस्तों ने जो शेयर किया है, और इतने सालों बाद भी एक आलोक वाजपेयी पार्टिसिपेंट ने एक साहिर की बहुत पुरानी नज्म थी मदाम, अतुल जी को पता होगा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, his disgust with the entitlement yes. of the society yes. comes through. yes. और इतने सालों बाद, मतलब आज से 70 साल बाद भी आलोक वाजपेयी जी
साहिर के मादाम नज्म को, जो कि फिल्मी नज्म नहीं है बिल्कुल भी, उसको याद करते हैं, और that shows his enduring popularity of Sahir. Before I come to the last points, तो मैं एक छोटा सा नज्म साहिर का पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि साहिर सिर्फ उर्दू शायर ही नहीं थे। जब वो लिखने पे आते थे तो ऐसे ऐसे पूरी नज्म लिख देते थे जिसमें शायद एक भी सो कॉल्ड उर्दू वर्ड नहीं है। सो कॉल्ड उर्दू वर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को खुद ये बड़ा डिस्टिंक्शन बहुत वेग लगता है कि कहाँ उर्दू खत्म होती है, कहाँ हिंदी शुरू होती है। इसलिए इस नज्म में मेरे ख्याल से तो एक आध वर्ड शब्द को छोड़ के एक ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको कि हम कहें सो कॉल्ड उर्दू। और दिस आई थिंक इज ए, आप लोग समझ रहे होंगे कि दिस इज अ वेरी कंटेम्पररी कंट्रोवर्सी आल्सो गोइंग ऑन कि कौन सा उर्दू है और कौन सा हिंदी है। इसलिए मैं इस नज्म को खास रूप से पढ़ना चाहता हूँ साहिर। इसका नाम था एक वाकया, और मेरा मानना यह है कि साहिर ट्रेन में सफर कर रहे थे और ट्रेन में सफर करते करते उन्होंने ये लिखी थी। अंधियारी रात के आंगन में ये सुबह के कदमों की आहट, ये भीगी भीगी सर्द हवा, ये हल्की हल्की धुंधलाहट। गाड़ी में हूं तन्हा महवे सफर और नींद नहीं है आंखों में, भूले बिसरे रुमानों के ख्वाबों की जमी है आंखों में। अगले दिन हाथ हिलाते हैं, पिछली बातें याद आती हैं, गुमगुश्ता खुशियां आंखों में आंसू बनकर लहराती हैं। सीने के वीरां गोशे में एक टीस सी करवट लेती है, नाकाम उमंगे रोती हैं, उम्मीद सहारे देती हैं। वो राहें ज़हन में घूमती हैं जिन राहों से आज आया हूं, कितनी उम्मीद से पहुंचा था, कितनी मायूसी लाया हूं। वेरी सिंपल नज्म जो कोई भी समझ सकता है, जिसकी खूबसूरती इतनी है कि एवरीबडी कैन फील दैट। और इसमें कोई भी क्लिष्ट उर्दू के शब्द नहीं है जिसमें कि ये कहा जाए कि उर्दू है या ये हिंदी है या ये, मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी है। ये जो जिस तरह से आपको पता है कि हिंदुस्तानी को ही पहले हिंदुस्तान की जबान बनना था। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी दो ही जबानों में बात होती थी, एक इंग्लिश में और एक हिंदुस्तानी में। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जब से पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी जबान बना लिया और हमने खुरच के उर्दू को खत्म करना शुरू किया है, इस बात से भी साहिर को बड़ा दुख था। और उनकी एक नज्म जो है गांधी हो या गालिब, उसमें आप गांधी हो या गालिब हो दोनों का आपका काम यहाँ, अब के बरस भी कत्ल हुई, एक की शिक्षा एक की ज़बां, खत्म हुआ दोनों का जश्न, आओ उन्हें अब कर दें दफन। तो वो जो उर्दू को जिस तरह से खुरच के हमने निकाला है अपने समाज से, अपने देश से, अपने संविधान से, और हमने हिंदी नाम की एक भाषा को अपनी राजभाषा बना लिया, इस पे भी वो खफा थे, उस पर उन्होंने लिखा भी है। इस बात पे भी मैं कहना चाहूँगा। So, just like in Serali, we respect the values of everybody and the sensibilities of everybody. I come to now the close of this session, and I like Vidya Shah ji to speak her last comments on this session and on Sahir, and then I'll come to Atul ji, and then we will close this session. Vidya ji. Thank you very much for inviting me to this session. And I think when I think of Sahir and his poetry, it may be all the beautiful songs that he wrote for films, Abhi na jao chhodkar, Hum intezar karenge, Chhu lene do nazuk hoton par, वगैरह वगैरह. But then there is also the other side of वो सुबह कभी तो आएगी. All of that is him, really. But I think he encapsulates where his heart lies in this one share, which I found particularly poignant in today's time, because I feel as a musician also, as an artist, I feel that at the end of the day, whatever my creative practices, wo logon ke dil ko chhuni chahiye in whatever way. That is a duty that I have to, that is also something that I feel I feel a sense of responsibility with that. And so Sahir says ki fan jo nadar tak nahi pahunche, abhi meyaar tak nahi pahunche. That, which basically says that art that does not reach everyone, including the poor, has not reached its potential. So I think that is the last thing that I would like to say, take away from Sahir and what he shared with the world. Thank you. Thank you so much, Vidya ji. Thank you for coming. Atul ji, your last words for this program and for Sahir. Sahir Sahab की तारीफ कैसे की जाए, सचमुच जो है सूरज को चिराग दिखाने की तरह है। और
मैं ये भी जानता हूँ, मैं अपनी लिमिटेशंस भी जानता हूँ कि मैं कहूँगा कि मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले और मुझसे बेहतर शाहिर को समझने वाले लोग इस देश में हैं। फिर भी आपने मुझे दावत दी, आपने मुझे यहाँ बुलाया कि मैं भी शाहिर को उन्हीं के शब्दों से, उन्हीं की चीज़ों से उनको श्रद्धांजलि दे सकूं। जैसे गंगा को गंगा जल से ही अर्घ चढ़ाया जाता है, वैसे ही इसके लिए मैं शेराली का शुक्रगुजार हूँ बहुत बहुत। और शाहिर साहब का तो एक शब्द पसंद है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे पसंदीदा गानों में से कौन है, 3 लंबी लिस्ट से उनके अच्छे गानों की कहाँ तक बताया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से जो यहाँ पे समीना ने अपने पीछे लिखा है वो गाना मुझे बहुत ही पसंद है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। और कहाँ इस गाने में वो उसको गीता तक पहुंचा देते हैं जहाँ के वो गम और खुशी का फर्क न महसूस हो, जहाँ मैं जिंदगी को उस मयार पे लाता चला गया। ये जो है, ये स्थित प्रज्ञता की बात जो गीता करती है कि ना मैं खुशी में खुश होऊंगा, ना मैं गम में मैं गमी मनाऊंगा, ये जो गीता तक पहुंचा देते हैं कैसे एक सिगरेट के साथ में गाते गाते। ये जो शाहिर की सरलता जो है, ये शाहिर का लोगों तक पहुंचना, उनको छूने की बात जो है, मेरे ख्याल से इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिलता है। एक सिगरेट में भी वो गीता तक हमको पहुंचा देते हैं, इतना गहरा ख्याल इतने आम फहम लफ्जों में कह जाते हैं। शाहिर को बहुत बहुत सलाम। धन्यवाद अतुल जी, आप हमारे इस एपिसोड में आए। धन्यवाद विद्या जी, आप हमारे इस एपिसोड में आई। आई थैंक ऑल माय फ्रेंड्स एंड all the friends who came and joined us today. I would just like to end by telling once again why we do this and why we did this episode. This is a completely pro bono effort from all of us. हम लोगों का ये पेशा नहीं है। हम लोग इस एपिसोड को इसलिए करते हैं सेराली के, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि कुछ कॉमन चीज़ों के प्रति, किताबों के प्रति, कुछ मान्यताओं के प्रति के साथ हम लोग की कन्वर्जेशंस होती रहनी चाहिए। और ये छोटी छोटी कन्वर्जेशंस ही समाज में कल्चर को क्रिएट करती है। और इससे कोई भी लिंक नहीं है कि मैं आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हूँ, because this ceremony started much before I joined Ministry of Culture. So, but I do believe that these small conversations are important in a society. Exchange of ideas are important in society. And इसका एक बहुत we are not here to change the world, but these small conversations have their own value in sustaining a society and its culture. That was why we do Serali. And this episode on Sahir was done because of the obvious reason that we thought कि साहिर के सेंटेनरी ईयर में हम लोगों को उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहिए। मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए, आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने कहा। और मैं अब समीना को माइक देता हूं टू अनाउंस द क्लोजर ऑफ दिस एपिसोड। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। ये साहिर पे कार्यक्रम हम पूरा घंटा, पूरा दिन कर सकते हैं, खत्म ना हो, लेकिन प्रोग्राम को खत्म करना है। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, मैं पढ़ना चाह रही थी और सुनाना चाह रही थी सब लोगों को, पर इतना वक्त नहीं। और थैंक यू सो मच अतुल जी, थैंक यू सो मच विद्या जी। और सर ने जो भी बात कही है साहिर का, उस पर एक शेर भी है जो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग बेसिकली ये है कि मैं बहारें तो नहीं ला पाया, पर कम से कम रास्ते में कुछ कांटे जरूर कम कर दिए। तो सेराली भी बेसिकली यही कुछ करता है। बहारें अगर हम ना भी लेकर आ पाए, पर शायद कुछ कांटे कम करने की कोशिश जरूर करते हैं। और पर्सनली मैं क्योंकि खुद नॉन प्रॉफिट से काम करती हूँ, मैं सोशल सेक्टर में काम करती हूँ, तो साहिर का जो सोशल कॉन्शियसनेस वाला पार्ट है वो मुझे बहुत स्ट्रांगली अपील करता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो ये चीजें साहिर हर किसी से बात करते हैं, यू नो, तो इतने वाइड उनका पूरा स्पेक्ट्रम है दैट ही स्पीक्स टू एवरीवन। एंड आई थिंक फाइनल क्लोजर कमेंट, अगर हम अनरिक्विटेड लव जो है, जो साहिर ने जिस तरह से प्रेजेंट किया है, आई डोंट थिंक कोई और कर सकता है। और क्लोज करूंगी अमृता प्रीतम और साहिर के दो जो उन्होंने एक ही बात कही है अनरिक्विटेड लव पे। अमृता ने लिखा है, अमृता प्रीतम जी ने लिखा है, मोहब्बत की परख का यही तो रास्ता है, तेरी तलाश में निकलूं तुझे न पाऊं मैं। और साहिर लिखते हैं, मोहब्बत जो अंजाम तक पहुंची नहीं वही मोहब्बत है, बाकी कुछ भी नहीं। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग, दिस इज ब्यूटीफुल। मतलब मैं इस तरह की पोइट्री बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ती, फिर भी मुझे अच्छी लगती है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू द ऑडियंस जो आए और जिन्होंने पूरा प्रोग्राम सुना। और साहिर की पॉपुलैरिटी समझ में आती है, 41 years आफ्टर हिज डेथ ही स्टिल सो रेलेवेंट इवन टू द यूथ। सो वॉर पे बातें होती हैं कि जंग खुद एक मसला है,
जग क्या किसी मसले का हल देगी, अभी कुछ दिन पहले तक ये बातें हो रही थी, यूथ इसको यूज कर रहे थे. So he's a very relevant poet. Now we come to a close. Thank you everyone. Thank you Partha sir, thank you Vidya ji, and thank you Atul ji and all the audience. Thank you so much.